محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ نیتی آیوگ اجلاس کے بائیکاٹ کا ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے کیا اعلان۔ 15 اگست سے مزید 10 لاکھ افراد کے لیے وظیفے کی جائے گی اجرائی۔ متحدہ ضلع میں تلنگانہ جہدکار پروفیسر جے شنکر کی جینتی کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے باسواڑہ و شہر نظام آباد میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی و ضلع کلکٹر نے پیش کی خراج عقیدت۔ عرس شریف حضرت سید شاہ فیروز دادا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بودھن کا حسب روایت جوش و خروش کے ساتھ انعقاد و عوام کی کثیر تعداد نے کی شرکت۔ تیالس ضلع صدر جیون ریڈی پر قاتلانہ حملہ، بزدلانہ حرکت۔ حملے کی مذمت کرتے ہوئے رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر و دیگر اقلیتی قائدین نے ان کے گھر پہنچ کر کی ملاقات۔ اتوار 7 اگست کو پولیس استائی جائیدادوں کے تقرر کے لیے امتحان کا انعقاد۔ بائیو میٹرک سسٹم و دیگر جدید حفاظتی انتظامات امتحان کو شفافیت کے ساتھ منعقد کرنے کے لیے محکمہ پولیس تیار، CP KR ناگراجو کا اظہار۔ MLA جیون ریڈی پر حملے کے لیے گزشتہ 2 ماہ سے تیاری، 2 حملہ ور گرفتار، بنجارہ ہلز پولیس نے لیا حراست میں۔ عالمی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کامن ویلتھ گیم کے فائنل میں داخل، کل نارتھ آئرلینڈ سے ہوگا مقابلہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر نظام آباد کے نوجوان شیخ رفیع الدین نے جارجیا میں منعقدہ ووشو ٹورنامنٹ میں حاصل کیا برونز میڈل۔ جنرل سیکرٹری ووشو ایسوسی ایشن نظام آباد عبدالعمر نے دی مبارکباد۔ شہر نظام آباد کے رہنے والے نوجوان شیخ رفیع الدین نے حال ہی میں جارجیا میں ہوئے بوٹومی اوپن انٹرنیشنل ووشو ٹورنامنٹ میں بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان و اپنی ریاست و ضلع کا نام روشن کرتے ہوئے ہندوستان کے لیے جیت حاصل کی، برونز میڈل اپنے نام کیا۔ ان کی اس کامیابی پر شہر نظام آباد کے مشہور و معروف و ماہر جنرل سیکرٹری ووشو ایسوسی ایشن عبدالعمر شیخ رفیع الدین کی اس کامیابی پر ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ تیالس ضلع صدر جیون ریڈی پر قاتلانہ حملہ، ایک جاہلانہ حرکت، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے کیا اظہار۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے قاتلانہ حملے میں محفوظ عوام کے چہیتے ہر دل عزیز قائد ضلع تیالس صدر آرمر رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی سے حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں واقع رہائش گاہ میں ملاقات کی۔ وہ جان لیوا حملے کے تعلق سے مکمل معلومات حاصل کرتے ہوئے ہمت افزائی کرتے ہوئے اظہار گانیکت کا اظہار کیا۔ رکن اسمبلی جیون ریڈی کی بڑھتی ہوئی شہرت و آئندہ انتخابات میں کامیابی یقینی ہونے سے بوکھلاہٹ کا شکار مخالف کی جانب سے ان پر کیا گیا قاتلانہ حملہ ناقابل برداشت۔ حکومت سخت سے سخت کارروائی کرے، سینئر تیالس قائد سمیر احمد و عثمان اعظمی کا اظہار۔
ریاست تلنگانہ کی ابھرتی ہوئی شخصیت پی یو سی کمیٹی چیئرمین TRS ضلع صدر و آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی پر قاتلانہ حملے کی مذمت آج پوری ریاست میں ہر طبقے و مذہب کے ماننے والے عوام کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور آج بھی عوام اظہار یگانگت پیش کرتے ہوئے ان کے گھر پر سووں کی تعداد میں جمع ہو کر ملاقات کر رہے ہیں۔ اس طرز پر آج ان کی مزاج پرسی و ان سے اظہار یگانگت کا اظہار کرنے کے لیے TRS ضلع اقلیتی قائد سمیر احمد، آرمور اقلیتی قائد عثمان اعظمی کی قیادت میں جمعیت اہل حدیث کے وفد صدر محی الدین، ناظم کمیٹی عمران، خازن کمیٹی بلغ یعقوب الیاس نے رکن اسمبلی جیون ریڈی کے حیدرآباد میں موجود قیام گاہ پہنچ کر ملاقات کرتے ہوئے ان کی مزاج پرسی کی اور ان پر ہوئے قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی حفاظت میں مزید اضافہ کرے اور ہر دل عزیز رکن اسمبلی جیون ریڈی کی حفاظت و ان کے ہمراہ ہماری دعائیں رہنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر TRS آرمور قائدین فرحت اللہ خان، نہال الدین، تراب علی، محسن، عبداللہ و دیگر موجود تھے۔ آرمور کی جمعیت اہل حدیث اور سینئر سٹیزن کے ساتھ ہم ہمارے ہر دل عزیز جیون ریڈی صاحب MLA کے گھر پر تشریف لائے ہیں اور بزرگ لوگ بھی آئے ہیں جو ٹائم نکال کر یہاں پر جیون ریڈی صاحب کے لیے دعا گو بھی ہے، لوگ مسجدوں میں بھی دعا کی گئی ہے۔ یہ جو حرکت ہوئی ہے جیون ریڈی صاحب کے ساتھ ان کی مقبولیت ہے اور آرمور کانسٹیچوئنسی کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے ఏ కుల సంఘాల మతాల కానీ ఏ ధర్మంకి చెందిన కానీ ఆయన వచ్చి ఇలా పని తీసుకొని అన్నం తినిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎవరు నిరాశ పోలే జీవన్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళి అయితే జీవన్ రెడ్డి సార్ మీద ఏమో కుట్ర చేసినారు వాళ్ళకి అయితే మేము కోరుతున్నాం కేసీఆర్ సాబ్ కేటీఆర్ సాబ్తోని కఠిన అంటే ఎంత కఠిన అంటే చర్యలు తీసుకోవాలా వాళ్ళకి ఏ మా శిక్ష అంటే ఆ శిక్ష వేయాలా ఎందుకంటే ఇటువంటి మంచి పని మనిషి వాళ్ళకి పని చేయడానికి ధైర్యం రావాలా అంటే అలాగే శిక్ష వేయాలి ఖచ్చితంగా। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। निज़ामाबाद ज़िले की आन बान शान हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन, वो रुकन असम्बली आरमूर, वो ज़िला पार्टी के TRS पार्टी के सदर आशन नगारी जीवन रेड्डी साहब पर जो कातलाना हमले की कोशिश की गई, हम आरमूर अक़लियती क़ायदीन आज जमात अहले हदीस और सीनियर TRS के क़ायदीन के साथ MLA साहब के पास हैदराबाद बंजारा हिल्स पे उनके मकान पे पहुंच के इज्जत पेश करे, जिसमें क्योंकि जीवन रेड्डी साहब एक हल्के असम्बली नहीं, निज़ामाबाद ज़िले के सदर ही नहीं बल्कि तेलंगाना पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी 56 कारपोरेशनों के चेयरमैन साहब की मकबूलियत को जो सामने वाले जो कातलाना हमला करे, आरमूर के हर गांव नहीं हर घर के फर्द में भी यही टाक चल रहा है कि काबिल और जो है सो डेवलपमेंट करने वाले, और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद से हर घर में जो जीवन रेड्डी साहब के स्कीमात, जीवन रेड्डी साहब के कारनामे, जीवन रेड्डी साहब के डेवलपमेंट पहुंचा है बोले तो एक ही जीवन रेड्डी साहब के जरिए पहुंचा है। मैं आरमूर हल्के असम्बली के हर एक घर में भी वाक़े मैं बयान कर सकता हूँ कि चाहे CM मुबारक होने दीजिए, चाहे शादी मुबारक होने दीजिए, चाहे उनके अच्छे में होने दीजिए, चाहे बुरे में होने दीजिए, हर घर में काम करे सो फर्द का नाम ही जीवन रेड्डी है। ये सब साहब की मकबूलियत को देखते हुए, क्योंकि आने वाला दौर इंशाअल्लाह ताला हम सब नहीं, ऑल कमेटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई बोल के नारे देने की शख्सियत का नाम जीवन रेड्डी साहब है। ये सब देखते हुए उनके ऊपर कातलाना हमले की कोशिश की गई, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और ये अल्लाह से दुआ गो है कि हमारे जीवन रेड्डी साहब को उनकी उम्र और बड़ी करे और जो है सो आरमूर की तरक्की, निज़ामाबाद की तरक्की और KCR साहब की क़ियादत, KTR साहब की सरपरस्ती, कविता मैडम के साथ आरमूर हल्के असम्बली में सुनहरा तेलंगाना की मिसाल कायम करने वाली शख्सियत हमारे जीवन रेड्डी साहब है। और मैं फिर एक बार अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि या अल्लाह हमारे जीवन रेड्डी साहब को सेहत दे ताकि आरमूर की डेवलपमेंट हो सके और हर एक कौम के लोगों के साथ रहने वाले हर एक के साथ आज वाक़ई आरमूर हल्के असम्बली में 1 लाख कुछ कम 2 लाख से कम बोधन में हजरत सैयद शाह फेरोज दादा समरखंदी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ ऑल इंडिया सूफी सज्जद नशीन कौंसिल के अराकीन की शिरकत।
صوفی محمد داؤد علی شاہ قادری جامع سلاسل نظام آباد معتمد آستانہ حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان آباد و انچارج آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل نظام آباد نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ بودھن میں حضرت سید شاہ فیروز دادا سمیر خندی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 روزہ عرس شریف کا کل اختتام عمل میں آیا۔ بروز جمعرات بمکان جناب الحاج شیخ احمد صاحب ولد جناب شیخ فرید صاحب اولڈ آندھرا بینک پر بعد نماز اثر محفل نعت وہ منقبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ منعقد تھا۔ اس محفل کی سرپرستی حضرت صوفی یونس مرزا قادری الچشتی بیابانی قبلہ سجدہ نشین آستانہ حضرت سید شاہ کمال بیابانی کنٹیشور و انچارج کونسل نظام آباد نے کی ہے، جبکہ اس محفل کی صدارت شولہویں مقرر حضرت مولانا الحاج محمد کریم الدین کمال صابری قبلہ صدر عیدگاہ مدینہ نظام آباد نے کی اور عظمت اولیاء نظام پر بصیرت افروز خطاب کیا۔ اس عرس شریف اور نعتیہ محفل میں شرکت کرنے والے قابل ذکر حضرات میں حضرت الحاج سید ناظم الدین قادری صاحب قبلہ صدر تحریک اہل سنت الجماعت و امام و خطیب مسجد عمر فاروق بودھن جناب سید اسد علی شاہ قادری صاحب، سجدہ نشین بودھن جناب محمد عبد الوہاب صاحب، سجدہ نشین بودھن جناب محمد نظام الدین علی شاہ قادری پیرکیٹ آرمو، جناب صوفی حامد علی شاہ قادری صاحب، جناب شوکت رضا صاحب، جناب عبداللہ قریشی قادری صاحب، جناب صوفی شیخ اویس قادری صاحب نے شرکت کی ہے۔ جناب الحاج شیخ احمد صاحب نے تمام مشائخین و سجدگان کی گل پوشی و شال پوشی کی۔ اس کے برادران جناب شیخ معین صاحب، جناب شیخ یاسین صاحب، جناب شیخ اکبر صاحب اور جناب شیخ محمود صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا ہے۔ قبل از مغرب جناب شیخ احمد صاحب کے مکان سے جلوس سندل نکال کر درگاہ شریف پہنچا۔ بعد نماز مغرب سندل مالی کی مراسم ادا کیے گئے اور بعد سندل مالی احاطہ درگاہ شریف میں جناب الحاج شیخ احمد صاحب کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی لنگر عام کا نظم تھا۔ پروگرام کے اختتام پر جناب شیخ احمد صاحب نے تمام مہمانوں، مشائخین اور سجدگان کا شکریہ ادا کیا۔ کہیں ویرانے میں کہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں رہ کر اپنے دل کو دنیا سے نہیں لگاتے تھے، بلکہ وہ صرف اللہ کی یاد میں رہ کے اپنے دل کو اللہ کی طرف رکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ دنیا سے کنارہ کش رہے، اور پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کے قرب میں رہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں دنیاوی مثال کے ساتھ، اگر پولیس اسٹیشن کا کوئی کام ہے اور ایسے ہی نہیں مل رہا ہے اور کوئی اس کا ایک آدمی قریبی بول دیا کہ جاؤ جی یہ کام ہو جاتا جاؤ، تو دوسرا آدمی بولتا ارے ایسے ہی کا بہت قریبی ہے انہیں بول۔ اس سال پریلیمنری تحریری امتحانی مراکز کے پاس CRPC کی دفعہ کے تحت 144 سیکشن کو روب عمل میں لا کر بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے مکمل شفافیت کے ساتھ انعقاد عمل میں لانے کا CP کیا ناگراجو نے کیا اظہار۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کیا ناگراجو نے صحافتی نشست کا اہتمام کرتے ہوئے کہا کہ بروز اتوار کو منعقد ہونے والے پریلیمنری تحریری امتحان کے لیے ضلع نظام آباد میں 13 مراکز و آرمور میں 3 مراکز کا قیام عمل میں لاتے ہوئے ان مراکز پر CRPC کی دفعہ 144 کے تحت سیکشن عائد کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام امتحانی مراکز کے پاس واقع زیروکس سینٹر، انٹرنیٹ سینٹر و ٹریفک ناف کے لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا جائے اور امتحانی مراکز سے 500 میٹر تک عوام جمع نہ ہو اور امتحانی مراکز کے پاس سخت حفاظتی انتظامات کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ امیدوار امتحان کے وقت سے 1 گھنٹہ قبل امتحانی مراکز پر حاضر ہونے کا اظہار کیا۔ آسا اسکیم کے تحت 15 اگست کو 10 لاکھ نئے پینشن دینے کا چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کا اعلان، جس میں 57 سال عمر کے افراد بھی شامل۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں اس وقت 36 لاکھ لوگوں نے پینشن کے لیے درخواستیں دی ہے، جس میں اضافے کے باعث پینشنرز کی کل تعداد 46 لاکھ تک پہنچ جائے گی اور قدیم و نئے پینشنرز کو بارکوڈ کے تحت پینشن بک دی جائے گی۔ اسی طرح سے ریاست کے ڈائلسس مریضوں کو پینشن جاری رکھتے ہوئے نئے پینشن دینے کا اظہار کیا۔ 15 اگست کو دیگر جیلوں میں محروس 78 مجرمین کو رہا کرنے کا اظہار کیا۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی کوٹگیر منڈل کا دورہ کرتے ہوئے موضوعات میں منعقد ہونے والی ترقیاتی و سنگ بنیادی تقریب میں کی شرکت۔
रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी कोटगिर मंडल का दौरा करते हुए जनापल्ली आबादी जनापल्ली फोरम में मुनक्किद होने वाले तरक्याती कामों का संगे बुनियाद तकारीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात मुल्क की सतह पर अव्वलीन मुकाम हासिल करने के साथ साथ रियासत में जारी स्कीमात का किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि बांसवाड़ा हल्के के लिए 10,000 डबल बेडरूम की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसमें माइनॉरिटी मकानात की तामीर मुकम्मल होने पर मुस्तहिक़ीन को हवाले किए गए और अनकरीब अहल अफराद खानदान के घर को 3 लाख रुपए लोन मंजूर करने का इजहार किया। ఎప్పుడైనా మండలి కావాలని అడిగిరా మీరు? అడగరు. గవర్నమెంట్ నాకు అడిగిండ్రు, గవర్నమెంట్ వచ్చి కలెక్టర్ గారికి అడిగితే కలెక్టర్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి నేను కూడా పంపలే, కలెక్టర్ గారు అడిగితేనే పంపిననే. సార్ మీ కాన్ఫరెన్స్లో ఏమన్నా మండలి కావాల్సి ఉంటే పంపి. పోతంగల్ వాళ్ళు ఒకప్పుడు అడిగారు, వాళ్ళు కూడా ప్రత్యేకంగా ఒకసారి 2 సార్లు అడిగింది కానీ దాని గురించి పెద్ద శ్రద్ధగా అడగలే. అడిగారు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కలెక్టర్ గారు పంపించారు. ఆ పంపించిన దాంట్లో దాని ఏముంటుందంటే ఆ గ్రామ పంచాయతీల తీర్మానం ఇవ్వాలి. మా పోతంగల్ గ్రామంలో మేము ఉంటామని ఒక తీర్మానం రాసి ఇవ్వాలి. ఏ గ్రామ పంచాయతీల తీర్మానం రాసిస్తారో ఆ గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానంతో పాటు 7 ఎంపీటీసీలు కనీసం ఉండాలి. కాబట్టి आरमूर ने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी पर हुए जानलेवा हमले पर आरमूर कार मैकेनिक एसोसिएशन के कायदीन ने की मुलाकात। आरमूर कार मैकेनिक एसोसिएशन के कायदीन व अरकान की कसीर तादाद हैदराबाद पहुंचकर रुकन असम्बली आरमूर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात की। ये मुलाकात हेड मैकेनिक मोहम्मद इमरान की निगरानी में कई वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमला किया गया था, जिसकी इत्तला पाकर आरमूर कार मैकेनिक एसोसिएशन के तकरीबन 100 अफराद ने हैदराबाद रोड नंबर 12 पर वाक़ इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करते हुए इनसे बात की तफसीलात हासिल की और इनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस मौके पर हेड मैकेनिक मोहम्मद इमरान, सदर बिमन्ना, नायब सदर राकेश, सेक्रेटरी जमीर, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद गौस, कैशियर सभी और दीगर मौजूद थे। इज्जत की हर चीज़ की हिफाजत फरमा, उनको बेहतरीन से बेहतरीन हिदायत से मालामाल फरमा और आने वाले तमाम बलाओं को टाल दे और आने वाले जो रोज़ है उसमें आगे बहुत तरक्की अता फरमा। जो मांगा है उसे अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने शान शौकत से अता फरमा, जो भी टूटे फूटे इस बात में मांगा है महज़ अपने फज़ल करम से कबूल मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आप हिफाजत रखें। आज भैंसा टीआरएस पार्टी कारकुनान ने पार्टी दफ्तर पर एमएलए जी विठल रेड्डी का जन्मदिन बड़े जोश व खरोश से मनाया। भैंसा टीआरएस अखिलती सदर फारूक अहमद सिद्दीकी ने पार्टी दफ्तर पर मुनक़्क़िद जन्मदिन तकरीब में केक कट कर एमएलए जी विठल रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हुए लंबी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दौरान तकरीब कारकुनान से खिताब करते हुए सैयद आसिफ नायब सदर मार्केट कमेटी ने एमएएम साहब को मिसाली क़ायद करार देते हुए कहा कि एमए जी विठल रेड्डी अवामी क़ायद है जो हर वक्त अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल के किसी के लिए मुस्तक़िल कोशा रहते। इस मौके पर सैयद अली हाशमी, शेख पाशा अजीज अहमद कुरैशी, मोहम्मद आमिर, शेख अहमद के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कमरपल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले महिला संगम से वाबस्ता ख़वातीन को 15 करोड़ 26 लाख रुपए के चेक किए हवाले। कमरपल्ली मंडल में मुनक़्क़िदा महिला संगम के खर्ज मेला पर मबनी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए कमरपल्ली मंडल के महिला संगम से वाबस्ता ख़वातीन को 15 करोड़ 26 लाख रुपए के चेकों की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इसी तरह एक वक्त खर्च की हद सिर्फ 5 लाख रुपए थी, लेकिन इसमें इजाफा करते हुए 20 लाख रुपए का इजाफा किया गया और इनफरादी खर्च की हद 50,000 रुपए थी और इसे बढ़ाकर 3 लाख करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ बालकोंडा हल्का असम्बली के कमरपल्ली मंडल में 32 करोड़ से 160 करोड़ रुपए के खर्चात दिए जाने को काफी खुशाइन बात करार दिया। గంగారెడ్డి గారికి కావచ్చు, అక్కడ ప్రతి మండలంలో ఒకటే మాట చెప్తారు, ఎంత డబ్బు వీలైతే అంత డబ్బు ఆడవాళ్ళ చేయలేదు పంపించాలని. అది ఐకేపీ రుణాలు కావచ్చు, ఇంకా ఏ రకంగా సరే ఎంత వీలుంటే అంత ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే సహాయం ఆడవాళ్ళ చేయలేకపోతే అది ఆ కుటుంబానికి పనికి వస్తుంది, మగవాళ్ళ చేయలేకపోతే
माकलूर मंडल के मदनपल्ली देहात में ईसाई यादगिरी गौड ने मुकामी अवाम को साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखाधड़ी के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई। माकलूर मंडल के मदनपल्ली देहात में ईसाई यादगिरी गौड ने मुकामी अवाम को साइबर क्राइम व ऑनलाइन के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि किसी अजनबी अफराद की जानिब से फोन आने पर पैन कार्ड, OTP नंबर या किसी आधार कार्ड का नंबर ना बताए। इन शातिर अफराद की धोखाधड़ी को ना काम बनाए और साइबर क्राइम व ऑनलाइन से मुताल्लिका धोखाधड़ी के ताल्लुक से हर एक फर्द जानकारी हासिल करके चौकन्ना रहने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि मशकूक मुश्तबा आने वाले फोन मैसेजेस को क्लिक ना करें और साइबर क्राइम के धोखे में आने वाले अफराद फौरी तौर पर डायल 100 पर इत्तला देने की सूरत में रकम धोखा देने वाले मुजरिम के हाथ लगने से रुकने का इजहार किया। नवी पेट मंडल के मुकाम पर मुजाहिद तेलंगाना अंजहानी प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। नवी पेट मंडल के मुकाम पर मुजाहिद तेलंगाना अंजहानी प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकरीब को तेलंगाना तली के मुजस्समे के पास शानदार पैमाने पर मनाते हुए प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए अंत तक कोशिश करते हुए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तेलंगाना नज़रिए को मंजर आम पर लाने वाली अजीम शख्सियत प्रोफेसर जयशंकर को खिराज अक़ीदत पेश करना इंतहाई फ़ख्र की बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के बाद VRA की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाले एहतजाजी धरने को तायद फ्राहम करके धरने में शामिल अफराद को फ्रूट की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में भूमाचारी, युवजना वर्किंग प्रेसिडेंट बिट्टू, नरसैया, राजना, राजू, श्रीनिवास, संदीप, नवीन, विनय, विनोद व दीगर ने शिरकत की। माकलूर मंडल के मुकाम पर VRA की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाला एहतजाजी धरना आज 12वें यौम में दाखिल होने के बायस दलित शक्ति प्रोग्राम को माकलूर मंडल कमेटी की जानिब से तायद फ्राहम की गई। माकलूर मंडल के मुकाम पर VRA की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाला एहतजाजी धरना आज 12वें यौम में दाखिल होने के बायस दलित शक्ति प्रोग्राम माकलूर मंडल कमेटी की जानिब से तायद फ्राहम की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से VRA को दिए गए वादों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाए और अहल VRO को तरक्की देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर श्रीनिवास महाराज, निगरान कार मेम्बरान सुमन, श्रीहरि महाराज, वंशी महाराज, सुरेंद्र महाराज व दीगर ने शिरकत। माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़े रामचंद्रपल्ली देहात में अवामी नुमाइंदों के हाथों CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की तकसीम। माकलूर मंडल के रामचरणपल्ली देहात में मुकामी सरपंच खड़गम वेंकन्ना ने CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ माकलूर मंडल के TRS पार्टी युवा सदर T भूषण व TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़यादत वो ज़िले TRS सदर आर्म रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की काविशों के सबब मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को इलाज मुआलजे के लिए दरकार अखराजात की मंजूरी अमल में लाने के बायस आज मुस्तहिक़ीन में CMRF चेकों की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। ఈ రోజు మా రామచంద్రపల్లి గ్రామంలో దర్దాపుగా గతంలో 300 చెక్కులు పంపిణీ చేశాం. ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేక కరోనా పరిస్థితులలో ఎంతోమందికి విపరీతమైన ఖర్చులు హాస్పిటల్లో అయితే కూడా అట్టి బిల్లులన్నిట్లను 5000 ఉన్నా సరే तेलंगाना जागृति के ज़ेर निगरानी में भीमगल मंडल के मुकाम पर बानी तेलंगाना तहरीक प्रोफेसर जयशंकर की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। भीमगल के मुकाम पर तेलंगाना जागृति के ज़ेर निगरानी में बानी तेलंगाना तहरीक प्रोफेसर जयशंकर का यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके कारनामों को याद किया गया। इन्हें तेलंगाना रियासत की अवाम के लिए एक फरिश्ता करार दिया गया, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस रियासत की अवाम के लिए वक्फ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वार्ड नंबर 8 के काउंसलर सतीश गौड़, बालकुंडा असम्बली जागृति कन्वीनर, जागृति के ज़िले खजानची धीरज, ज़िले के कन्वीनर के राजेश्वर, माइनॉरिटी सदर सलमान, जावेद खान, जुनैद व दीगर ने शिरकत की। शहर इब्तिदा से हैदराबाद है, भाग्यनगर कभी नहीं रहा। RTI सवाल के जवाब में महकमे आसार खदीमा का वाज़ेह जवाब, फ़िरक़ा परस्तों को झटका।
शहर हैदराबाद फरगंदा बुनियाद का नाम तारीख में कभी भाग्य नगर नहीं था, बल्कि शहर के किसी और नाम की कोई दलील नहीं मिलती। महकमे आसार खदीमा ने RTI जहदकार की दाखिल करदा दरख्वास्त के जवाब में तौसीक की कि शहर का नाम तब्दील नहीं किया गया और नाम भाग्य नगर की कोई शाहिद महकमे आसार खदीमा के पास से चार मीनार से मुत्तसिल मुतनाज़ा ढांचे की तारीखी हैसियत न होने का जवाब देने के बाद महकमे आसार खदीमा की जानिब से ये दूसरा बड़ा जवाब है जो फिरका परस्तों के मुंह पर तमाचा है। बीजेपी जो बार बार शहर के नाम को तब्दील करने की बात करती है, इसके लिए महकमे आसार खदीमा की जानिब से दिया गया ये जवाब किसी झटके से कम नहीं है। बताया जाता है कि RTI जहदकार ने महकमे आसार खदीमा से सवालात में इस्तिफसार किया कि शहर हैदराबाद का नाम कभी भाग्यनगर था या नहीं। अगर शहर का नाम भाग्यनगर था तो कितने बरस तक शहर को भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इस्तिफसार किया कि शहर हैदराबाद के नाम की तब्दीली की साबिक में कोई तजवीज पेश की गई थी या किसी सिक्के पर भाग्यनगर कंधा होने की दलील है। महकमे आसार खदीमा के जवाब में वाज़ेह कहा गया कि ऐसी कोई तफसीलात महकमे आसार खदीमा के पास मौजूद नहीं है। सियासी मफादात के लिए बीजेपी की जानिब से हैदराबाद के नाम की तब्दीली के अलावा बेबुनियाद बयानात और शवाहिद की पेशकशी की कोशिशों को RTI के इस जवाब से धक्का लगा है। हालांकि इस मसले को बीजेपी ने शहरी नहीं बल्कि रियासत और कौमी सतह पर भी उठाने की कोशिश की है। महकमे आसार खदीमा ने जो जवाब दिया है इसके मुताबिक शहर की तारीख में भाग्यनगर का कोई तस्करा नहीं मिलता और न ही भाग्यनगर के नाम से कोई सिक्का जारी किया गया। मुल्क में शहरों के नाम की तब्दीली के साथ बीजेपी की जानिब से हैदराबाद के नाम की तब्दीली का मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन अब जबकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है शहर अपने क़याम से ही हैदराबाद है तो इस बेबुनियाद मुतालबे को तर्क कर दिया जाना चाहिए। बताया जाता है कि महकमे आसार खदीमा के इस जवाब पर रद्द-ए-अमल से बीजेपी ने अपने कायदीन को रोक दिया है, क्योंकि बयानबाजी की सूरत में खफ्त उठानी पड़ सकती है। महकमे आसार खदीमा ने साबिक में तारीखी चार मीनार के दामन में गैर कानूनी ढांचे के मुतालिक भी वाज़ेह कहा था कि चार मीनार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मरकज की मनमानी व गैर जमहूरी फैसलों की वजह से अवाम की जिंदगी दरहम बरहम होने का शहर के कांग्रेस भवन में मुनाकिदा इजलास से जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी का खिताब। निजामाबाद के कांग्रेस भवन में जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाना मोहन रेड्डी ने खिताब करते हुए गुज़िश्ता कल अमित शाह की जानिब से आयद करदा इल्जामात पर बरहमी का इजहार वो हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक्किद होने वाले पैदल सफर के ताल्लुक से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़रूरी अशिया पेट्रोल डीजल गैस के दामों में किए गए इजाफे पर कीमतों को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरना मुनक्किद किया जा रहा है। तो अमित शाह की जानिब से गैर जरूरी इल्जामात आयद करते हुए अपोजिशन कायदीन की जानिब से मुनक्किद होने वाले एहतजाजी धरने को गलत रुख देने के अलावा सिर्फ जुबानी बातों के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश करने बाज आने का इजहार किया। చేసినటువంటి తప్పుడు ఆరోపణ రెండవది 70 సంవత్సరాల పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా మొదలుకొని ఈ తేదీ వరకు నిజామాబాద్ జిల్లాలో నియోజకవర్గాల వారీగా పాదయాత్రలకు సంబంధించినటువంటి రెండు విషయాలపైన ఈరోజు పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। जिले टियारा सदर आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले के ताल्लुक से 2 माह कबल मनसूबाबंदी करने वाले दोनों मुजरिमीन को बंजारा हिल्स पुलिस मुलाजमिन ने लिया तहवील में। आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले टियारा सदर जीवन रेड्डी से प्रसाद गौड की आपसी रंजिश के तहत जानलेवा हमला करने के ताल्लुक से खाती ने दोनों अफराद से 2 माह कबल कत्ल करने का मंसूबा बनाने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर बंजारा हिल्स पुलिस मुलाजमीन ने तहकीकात करते हुए 2 माह पहले रुकन असम्बली आर्मू जीवन रेड्डी का कत्ल करने के ताल्लुक से होने वाली मनसूबाबंदी में मुलविस दोनों मुजरिमीन को तहवील में लेने का पुलिस मुलाजमीन ने इंकशाफ किया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शाह निजामाबाद आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन एक बाइक जीत के साथ गोल्ड मेडल की जानिब बड़ी तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रही हैं और आज मुनक्किद हुए मुकाबले में इंग्लैंड के बॉक्सर को 5-0 से शिकस्त देते हुए शानदार कामयाबी हासिल की और फाइनल में दाखिल हो गई है, जो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए खुशी व मसरत की खबर है। और उनका कल आखिरी मुकाबला नॉर्थ आयरलैंड से मुनक्किद होगा, जिसमें कामयाबी हासिल करते हुए वो गोल अपने नाम करने के लिए मुल्क में दुआएं भी की जा रही हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर।
नीति आयोग इजलास के बाइकाट का रियासती वज़ीर आला KCR ने किया ऐलान। 15 अगस्त से मजीद 10 लाख अफराद के लिए वजीफे की जाएगी इजराई। मुत्तहदा जिले में तेलंगाना जहदकार प्रोफेसर जयशंकर की जयंती का जोशो खरोश के साथ इनेकाद। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा व शहर निजामाबाद में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी व जिले कलेक्टर ने पेश की खराज अक़ीदत। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह फेरोज दादा समरखंदी रहमतुल्लाह अलैह बोधन का हस्ब रिवायत जोशो खरोश के साथ इनेकाद व अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। सियालत जिले सदर जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमला, बुज़दिलाना हरकत। हमले की मजम्मत करते हुए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर व दीगर अखिलती कायदीन ने उनके घर पहुंचकर की मुलाकात। इतवार 7 अगस्त को पुलिस इस्ताई जायदादों के तकर्रुर के लिए इम्तिहान का इनेकाद। बायोमेट्रिक सिस्टम व दीगर जदीद हिफाजती इंतजामात इम्तिहान को शिफाफियत के साथ मुनक्किद करने के लिए महकमे पुलिस तैयार। CP KR नागराजू का इजहार। MLA जीवन रेड्डी पर हमले के लिए गुज़िश्ता 2 माह से तैयारी। 2 हमलावर गिरफ्तार, बंजारा हिल्स पुलिस ने लिया हिरासत में। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन कॉमनवेल्थ गेम के फाइनल में दाखिल। कल नॉर्थ आयरलैंड से होगा मुकाबला। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।